It is well said that knowing is not enough, we must apply, and willing is not enough, we must do. So now for today's second lecture, mushroom production and preservation, I would like to call Dr. Baby Samoona, Assistant Professor, Division Plant Pathology, Directorate of Research, SKUAST-KASHMIR. Her major research area include fungal biology and is experienced in mushroom production. Ma'am owns 42 number of publications. She is having 6 years of experience in both teaching and research and is guiding several PG students. I wholeheartedly welcome you, ma'am, on the stage. Please, ma'am. Assalamu alaikum and good morning one and all. It's my privilege that I have been invited for the lecture in this prestigious training program, and I'm highly thankful to the head sir, Professor Ali Anwar sir, Professor Tanveer sir, who have invited me for delivering this lecture in this training program. And I hope whatever I'll be telling you and whatever topic I have been assigned to deliver here, it will be quite, you all will be able to understand it, because I have made it quite simple so that you all may understand, the people who are not from agriculture background as well as those who belong to agriculture background. Now, before coming to the actual topic of my today's this lecture, that is processing and preservation of mushroom. I hope you all know why to go for the preservation and processing of mushrooms, and why basically we want to preserve these mushrooms. You all might be aware of the importance of the mushroom. We go for the preservation only for that particular thing which is actually beneficial, जो हमारे लिए फायदेमंद होता है, उसी चीज को हम preserve करना चाहते हैं. And second important thing for preservation is that उस चीज को हम preserve करेंगे which is highly perishable, जिसका shelf life जो है वो काफी कम हो, ज़्यादा टाइम वो ना टिके उसके actual form में. That's why we go for the preservation of that particular thing. Now, before going into the preservation, हम ये जानेंगे कि हम mushrooms को क्यों preserve करें और इनमें ऐसा क्या importance है कि हम इनकी preservation करना चाहते हैं. देखिए, सबसे important चीज़ जो mushrooms में है वो इनका nutritional status है. That is, ये जो है इनका जो हमारे यहाँ most of the people here they suffer from cardiac diseases. आपने सुना होगा कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं who suffer from different types of cancers, right? Then in mushrooms में एक सबसे important चीज़ ये है कि ये cholesterol low cholesterol है. You can consider them 0% cholesterol is there. Then so that is very important for those patients, जैसे cardiac patients होते हैं जिनमें हार्ट की डिफरेंट बीमारियां होती है, उनके लिए ये हाईली बेनिफिशियल रहता है. या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, या आई टोल्ड यू कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ये हेल्प करता है. इसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कैंसर को फाइट करते हैं. और दूसरा इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज गुड फॉर योर बोन्स. नॉर्मली आपको पता है कि यहाँ पे मोस्टली इफ विल टॉक ऑफ कश्मीर, दिस पार्ट ऑफ यूटी, मोस्टली आप देखेंगे हड्डियों की प्रॉब्लम होती है लोगों में, है ना, जैसे एल्डरली पीपल होते हैं, इवन आज मुझे लगता है छोटों में भी. सो ये बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है. देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे सफर फ्रॉम अनीमिया. ठीक है, खून की कमी होती है. ये एब्जॉर्प्शन जो है आयरन की वो इम्प्रूव करता है. सो दैट हेल्प्स इन दोज पेशेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, जिनमें अनीमिया होता है. और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम मशरूम को यूज़ करेंगे, दैट इज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है जिनके अगेंस्ट ये मशरूम जो है ये काम करता है, एंड इट प्रिवेंट्स दैट इन्फ्लेमेशन. एंड बिसाइड्स ऑल दीज बेनिफिट्स, ये इम्यूनिटी को, जो बॉडी इम्यूनिटी है उसमें उसको इम्प्रूव करता है. वंस इम्यूनिटी इज इम्प्रूव, दैट मीन्स a person is able to combat any type of disorder, any type of disease. That's why
वी गो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज मशरूम्स, क्योंकि इनमें इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है. नाउ कमिंग टू द प्रिजर्वेशन, अब अगर हम इनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्रिजर्वेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. देयर मे बी मोर देन वन मेथड बाय वे ऑफ विच वी कैन प्रिजर्व दीज मेथड्स. अब मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन उस पे डिपेंड करेगा टाइम पे, दैट इज ड्यूरेशन. हम कितने टाइम के लिए ये मशरूम्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं. तो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, और वी कैन से मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन जो है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ये हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन मेथड्स. वन विल बी शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन, जब हमें कुछ डेज या कुछ वीक्स के लिए हम प्रिजर्व करना चाहते हैं मशरूम्स को. दूसरा होगा लॉन्ग टर्म, जब हम कुछ महीनों के लिए या मे बी एक साल तक मशरूम्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं. देन कमिंग टू द शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन. अब अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़ी ही टाइम के लिए, कुछ डेज और कुछ वीक्स के लिए मशरूम प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे? देखिए, नॉर्मली जैसे कि अभी प्रोफेसर सचिन ने बोला कि मशरूम्स जो है, अभी तक आपको पता चला कि मशरूम्स की बहुत सारी टाइप्स है. देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ मशरूम विच वी हैव टू प्रिजर्व. ठीक है, एक से ज्यादा मशरूम्स की किस्में हैं तो जिनको हम प्रिजर्व करेंगे. दैट इज बटन मशरूम आपने देखा, डिंगरी मशरूम है, बहुत सारे मशरूम्स हैं जिनको हम डिफरेंट वेज में प्रिजर्व करेंगे. अब हर एक मशरूम का अलग अलग अपना टेक्सचर होता है, अपना मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो वैरी करता है फ्रॉम वन टाइप ऑफ मशरूम टू अदर टाइप ऑफ मशरूम. एक मशरूम होता है दैट इज स्ट्रॉ मशरूम, वॉल्वेरियला. ठीक है, उसको जो पैडी स्ट्रॉ पे ग्रो करता है, तो उसको अगर हम प्रिजर्व करेंगे जस्ट एक मिनिमम टेम्परेचर पे, यू कैन से 10 to 15 डिग्री सेल्सियस पे. अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जैसे 10 to 15 डिग्री सेल्सियस है, तो उतने टेम्परेचर पे ये मशरूम जो है ये कब तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं? 2 दिन से ज्यादा आप इसको प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं. जस्ट एट दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. और प्रिजर्व आप किस में करेंगे? नॉर्मली हम पॉली बैग्स में प्रिजर्व करते हैं इसको, जिसमें इनकी एरेशन हो. पॉली बैग्स का देयर इज अ गॉज साइज, है ना. पॉलिथीन्स का एक गॉज साइज होता है, तो अब वो साइज हम चूज करेंगे जो पॉलिथीन जिनमें हम इसको प्रिजर्व करेंगे उसका 100 गॉज साइज होना चाहिए जिसमें हम प्रिजर्व करेंगे. एंड इट शुड हैव ऑलमोस्ट 5% उसमें सर्कुलेशन के लिए वो वेंट एरिया होना चाहिए. दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ आई वाज टेलिंग यू दैट हमारे पास बहुत टाइप्स के मशरूम्स होते हैं, लाइक वी हैव ऑयस्टर, वी हैव बटन, वी हैव मिल्की मशरूम्स. तो इन तीनों टाइप्स के मशरूम्स को हम एट लीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व कर सकते हैं इन्हीं पॉली बैग्स में, विच आर ऑफ 100 गॉज पॉली बैग्स में हम प्रिजर्व कर सकते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नाउ यू कैन कंपेयर. अभी जो हमने बोला जैसे स्ट्रॉ मशरूम है ना, उसको हम कम से कम 2 दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं 10 to 15 डिग्री सेल्सियस पे. अब आपके जो बाकी मशरूम्स है, लाइक बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है, यू कैन प्रिजर्व दोज मशरूम्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस पे उनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं. अब अगर बात करें कि कितने दिनों तक, for how long we can preserve these mushrooms at this particular range of temperature, almost 3 to 4 days तक हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं. लाइक आपका जो बटन मशरूम है, मिल्की मशरूम है, इन दो टाइप्स के मशरूम्स को आप कम से कम 3 से 4 दिन 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर सकते हैं. नाउ प्रिजर्वेशन की बात आपको पता है कि फाइनली जो अभी हम ऑल द प्रिजर्वेशन का जो बाकी प्रोसेस है वो पढ़ेंगे, बट फाइनली जो हमें है आफ्टर प्रिजर्वेशन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, इसको पैक करते हैं ना. एट द एंड वी गो फॉर पैकेजिंग. तो पैकेजिंग से पहले समटाइम्स हम क्या करते हैं, वी गो फॉर द प्री वॉशिंग. हम इन मशरूम्स को प्री वॉश करते हैं पैक करने से पहले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्री वॉशिंग इज नॉट रिकमेंडेड. या अगर हम प्री वॉशिंग करेंगे तो हमें कुछ इसमें एडिशनली, जैसे वी हैव टू गो फॉर द एडिशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. हम इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे या कोई एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड. क्यों?
वॉशिंग से पहले जैसे सर ने भी बताया, मॉइस्चर जो है इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दैट्स वाई हम रिकमेंड नहीं करते हैं फॉर द प्री वॉशिंग. एंड इफ एवर वी गो फॉर प्री वॉशिंग तो हम उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड मिलाएंगे या कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे, so that it will prevent the growth of bacteria or any other microorganism. Now, other method of preservation is जो कि important method है short term preservation. As far as short term preservation is concerned, इसमें हम अब जो method use करेंगे preserve करने के लिए mushrooms को, वो होगा रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. देखिए, रेफ्रिजरेटर्स ऑलमोस्ट वी ऑल हैव रेफ्रिजरेटर्स एट आवर होम्स, सबके पास होता है. उसमें ऑलमोस्ट 4 to 6 और मे बी 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है रेफ्रिजरेटर्स में, है ना. तो आप क्या कर सकते हैं, आप मशरूम्स को रेफ्रिजरेटर्स में जो सिंपल, अगर आपके पास कम क्वांटिटी मशरूम है, जस्ट घर के लिए आपने लाए हैं, आप कुछ दिन रखना चाहते हैं, तो आप उसको सिंपली घर वाले रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं जिसका टेम्परेचर 4 to 7 डिग्री के रेंज में होता है. देन अगर आप इसको स्लाइटली थोड़ा सा और कम टेम्परेचर पे रखना चाहेंगे, क्योंकि जितना हम टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करेंगे उतना ही ज्यादा ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व रहेगा. ठीक है, अब हमें इसको इंस्टेंटली यूज नहीं करना है. वी वांट टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो हम क्या करेंगे उसके लिए विल गो फॉर स्लाइटली लोअर टेम्परेचर्स, मे बी माइनस टेम्परेचर्स, हम -1 to -4 डिग्री सेल्सियस. तो थोड़ा सा हम कोल्ड स्टोरेज के लिए जाएंगे, उस पे हम मशरूम्स को रेफ्रिजरेट करेंगे. देन उसके बाद दूसरा एक, जैसे हम ज्यादा जैसे -18 अराउंड -18 डिग्री टेम्परेचर रेंज पे हम जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज से ज्यादा टेम्परेचर, दैट इज विल गो फॉर द फ्रीजिंग. जब हम ज्यादा कम टेम्परेचर पे प्रिजर्व करेंगे, उतने कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर है आपका, अगर आप रेफ्रिजरेट करेंगे उसमें नॉर्मली मशरूम रहेगा, इट विल नॉट गेट फ्रोजन. अब अगर आप ज्यादा लो माइनस टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो जाएगा. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. जब हम ज्यादा माइनस टेम्परेचर यूज करते हैं मशरूम्स को प्रिजर्व करने के लिए, उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं. सो आफ्टर रेफ्रिजरेशन, इफ वी वांट टू preserve our mushrooms for slightly longer duration, we'll go for freezing. हम freezing करेंगे. Then there is one advantage. एक advantage है refrigeration का over freezing. वो क्या है? देखिए, we have both options. अगर हमारे पास let me suppose हमारे पास ज़्यादा माइनस टेम्परेचर वाला इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं हो, एंड विल गो फॉर सिंपल रेफ्रिजरेशन. जो हमारे पास कार में अवेलेबल होगा रेफ्रिजरेटर, विल गो फॉर दैट. Normally there is one advantage of refrigeration over freezing. रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, उसमें एनर्जी जो है वो कम लगती है मशरूम्स को प्रिजर्व करने के लिए. दैट प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन दैट यूटिलाइजेस लेस एनर्जी इफ विल कंपेयर इट विद फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में ज्यादा एनर्जी लगती है टेम्परेचर जो वो मेंटेन करने में, और उसमें ज्यादा थोड़ा सा जो मशरूम्स है, इफ दे आर हार्वेस्टेड, तो उनको इमीडिएटली हमें लो टेम्परेचर पे स्टोर करना ही करना है. अब अगर हम उनको लो टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करेंगे आफ्टर हार्वेस्टिंग, सी जब तक वो क्रॉपिंग स्टेज में होते हैं, क्रॉपिंग स्टैंड में होते हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, उनका जो रेस्पिरेशन है, इट इज नॉर्मल. बट वंस you harvest the mushrooms, once you harvest the crop, the rate of respiration of mushrooms, it gets instantly increased. ये increase हो जाती है. अगर rate of respiration increase हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर उसमें metabolic activity जो है, enzymatic activity जो है वो quick हो जाएगी, है ना. That means उसका deterioration जो है, it will be quick. There will be quick deterioration of the fruiting bodies जो हमने harvest की होगी. That's why we need to immediately
rush the harvested crop to the low temperature. At least जो हमारा रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर है, कम से कम 5 डिग्री टेम्परेचर तक हमें उनको लाना है, जहां हम उनको स्टोर कर सकें, और मे बी फॉर फर्दर रेफ्रिजरेशन और फर्दर प्रोसेस. Then there is another method. I was just telling you the method of this preservation. It will depend upon the duration. How long we want to preserve our mushrooms. अब दूसरा मेथड जो है प्रिजर्वेशन का, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन. लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में हम मशरूम्स को कम से कम 1 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं. आप उनको यूज कर सकते हैं 1 साल तक. देन लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन जो है, इसमें डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉय होते हैं. लाइक पहला मेथड जो है, जो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज ड्राइंग. ड्राइंग में क्या करते हैं, व्हाई वी गो फॉर ड्राइंग. ड्राइंग हम वहां करेंगे, you all know that mushrooms are almost 95% of water, है ना. मशरूम्स क्या है, 95% वाटर है वो, है ना. दैट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट इज सो हाई, we cannot that's why shelf life is very less, and we cannot store these mushrooms at quite high temperatures, more than 5 degree, क्योंकि इनमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स और इन पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर भी नहीं होती है जो लॉस ऑफ मॉइस्चर को जो रोक सके. सो वी इंस्टेंटली नीड टू शिफ्ट देम टू द लो टेम्परेचर स्टोरेज. देन ड्राइंग का हम बोल रहे थे. We have to dry. We go for the dry for different types of mushrooms. Like हमारे पास एक type of mushroom है shiitake mushroom. This is Japanese mushroom, ठीक है, lantinus. Then we have other mushroom, that is wood air mushrooms. So we go for the drying of these mushrooms. Not only these mushrooms, we go for the drying of other mushrooms as well by this process. Now ड्राइंग में क्या हो जाएगा, जो ही हम ड्राई करेंगे मशरूम को, इट विल रिमूव दैट एक्सेसिव मॉइस्चर. वो एक्सेसिव मॉइस्चर को रिमूव करेगा. एंड वंस द एक्सेसिव मॉइस्चर इज रिमूव्ड, व्हाट विल हैपन, it will cause inactivation of microorganisms and enzymes जो मशरूम में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से मशरूम की deterioration क्विक होती है. those are microorganisms and enzymes. So once we are removing that excessive moisture, that means those enzymes, those microorganisms, they'll get inactivated. ठीक है, वो inactivate हो जाएंगे, and they'll no more be able to work on do their proper work, or they will not no more be able to function properly, you can say. Then dried this I told you that dried mushroom, it prevents deterioration, that's why we go for the drying. And once deterioration is prevented, that means it becomes convenient for us to store those mushrooms which we have dried for long term preservation. ठीक है, जब हम एक्सेसिव मॉइस्चर रिमूव करते हैं, ऐसे मशरूम्स को हम काफी देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं. Now, what should be the percentage of the dried mushrooms? I told you mushrooms are almost 95% water. अब इस मॉइस्चर लेवल को हमें ऑलमोस्ट 10% तक लाना है, उसके बाद ही हम इनको स्टोर एंड प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ड्राइंग से मॉइस्चर कंटेंट जो है कहाँ से कहाँ आ जाता है. दैट्स व्हाई these we are able to store these dry mushrooms for a longer duration. Then again ड्राइंग के भी टाइप्स होते हैं. अब हम कैसे कैसे ड्राई कर सकते हैं मशरूम को. पहला है सिंपल मेथड, दैट इज सन ड्राइंग. हम इनको ओपन सन में रखेंगे, विल ड्राई द मशरूम्स इन सन. और अब सन में अगर आपको इनको रखना है, लाइक यू विल प्लेस दीज मशरूम्स, कुछ आप शेल्फ जैसे कोई स्ट्रक्चर होगा अलमीरा टाइप, जिसमें डिफरेंट शेल्फ होंगे. आप स्प्रेड करेंगे मशरूम्स को जो आपको ड्राई करने हैं. एंड बट आप इनको कैसे रखेंगे, the gills should face the sun. जो sunlight है, gills should face the sun. मशरूम का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ठीक है. पाइलियस है, पाइलियस के अंदर गिल्स होते हैं, और जो स्टॉक है उसका दैट इज स्टाइप. सो यू हैव टू कीप इट इन द इन्वर्टेड पोजीशन, क्योंकि अंडर साइड ऑफ द पाइलियस देयर आर गिल्स. सो दैट इज हाउ you will keep these for sun drying. Then there is one more method of drying, that is called
थर्मल पावर ड्राइंग। उसमें आप क्या करेंगे, अगेन यूजिंग ड्रायर्स आप इनको हीट करेंगे मशरूम्स को, बट temperatures will be higher, like you will use temperature of the range around 40 degree और 40 to 60 डिग्री के रेंज में आप हीट प्रोवाइड करेंगे मशरूम्स को, जो इनको ड्राई करेगा, जो एक्सेसिव मॉइस्चर जो है इन मशरूम्स से रिमूव करेगा। देन वन मोर मेथड ऑफ ड्राइंग इज हॉट एयर ड्राइंग। यू कैन गो फॉर हॉट एयर ड्राइंग, लाइक यू कैन ब्लो हॉट एयर। देखिए अब थर्मल पावर ड्राइंग के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ आपने मुझे नहीं पता, सबको पता है, सबने ओवन देखा है जो लैब में होता है ना, हॉट एयर ओवन। लाइक वी हैव इक्विपमेंट्स लाइक दैट जहाँ पे हम टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे थर्मल पावर ड्राइंग के लिए, ठीक है। वो टेम्परेचर हम फिक्स करेंगे जिस टेम्परेचर पे मशरूम्स ड्राई हो जाएंगे। वी हैव मेनी इक्विपमेंट्स लाइक दैट। देन इफ विल गो फॉर हॉट एयर ड्राइंग, हॉट एयर ड्राइंग में आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप मशरूम्स को रखेंगे और डिफरेंट उसमें भी शेल्फ लाइक अरेंजमेंट होता है जहाँ से हॉट एयर ब्लो होता है, जैसे ब्लोवर्स है हमारे पास है ना। इफ विल यूज ब्लोवर्स, we have both the options. We can use the blowers for cooling as well as for heating. तो अगर हमें कूलिंग चाहिए तो हम कूलिंग वाला बटन उसमें ऑन रखते हैं, अगर हमें हीटिंग चाहिए तो हीटिंग वाला। तो क्या आती है, हॉट एयर आ जाती है। In the same manner, we can use dryers, we can use other equipments for the drying of mushrooms, and that is called hot air drying. So drying जो है वो हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, और drying जो है ये कौन सा मेथड है, ये है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन का एक मेथड। देन ये दूसरा मेथड है, दिस इज वन मोर मेथड ऑफ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, दैट इज कैनिंग एंड बॉटलिंग। आपने देखा होगा, मोस्टली आप लोगों ने कैंड मशरूम्स खाए होंगे, है ना, या देखा होगा कि मार्केट में कैंड मशरूम्स अवेलेबल होते हैं। तो अब कैनिंग हम जो हम मशरूम्स की कैनिंग करते हैं वो कम से कम हम 1 साल तक वो मशरूम्स को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स उनका शेल्फ लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा अप टू 1 ईयर, जबकि 2 दिन से ज्यादा अंडर नॉर्मल टेम्परेचर मशरूम का शेल्फ लाइफ नहीं है। तो by the process of canning, the shelf life of the mushroom can be extended up to 1 year. And अब canning जो है itself, it is a complex process. ये इसमें बहुत सारे steps है। canning हम कहाँ से start करते हैं और इसमें क्या-क्या steps है। इसमें cleaning आ जाएगा आपका, blanching आएगा, then canning, then sterilization, then cooling, then labeling and packaging. So these are different steps which are itself involved in the process of canning. Then पहला स्टेप जो है अगर हम देखें कैनिंग में, दैट इज क्लीनिंग एंड ब्लांचिंग। मशरूम्स को जो भी हमने हार्वेस्ट किए उनको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। And we treat those mushrooms with appropriate level of either bisulfite or sodium ascorbate. ये केमिकल यूज करने से जो मशरूम्स का कलर जो है वो रिटेन होता है, दे डोंट गेट डिसकलर्ड। आपको पता है कि मशरूम अगर हम व्हाइट बटर मशरूम, हर एक मशरूम का एक पेक्यूलियर कलर होता है, जैसे व्हाइट बटर मशरूम व्हाइट कलर होता है। तो अगर हम मशरूम्स को ट्रीट करेंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड से, दैट इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और एस्कॉर्बेट, इट विल हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर। मशरूम का कलर होता है वो रिटेन करेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको सिंपल वाटर से विल वॉश देम, विल रिंस द मशरूम्स वी वांट टू कैन, ठीक है। विल गो फॉर द ब्लांचिंग, फॉर दैट इज 2 मिनट्स। अब ब्लांचिंग में क्या करते हैं, हम इन मशरूम्स को बॉईल करते हैं इन अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1% सिट्रिक एसिड एंड 1% सॉल्ट। नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम से ज्यादा आप इनको ब्लांच नहीं करेंगे। सो ब्लांचिंग सिंपली इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग मशरूम्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड सॉल्ट। तो वो आप अराउंड 5 to 6 मिनट्स तक आप इनको ये ट्रीटमेंट देंगे, बट टेम्परेचर क्या होगा, 95 to 100 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर शुड बी इन दिस रेंज अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे आप 5 से 6 मिनट तक इनको ब्लांच करेंगे। Now, why again? See, whatever we do, there is a purpose behind. जो भी हम काम करेंगे उसके पीछे पर्पस होता है। ऐसे पर्पसलेस हम कोई काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम ब्लांचिंग कर रहे हैं उसका कोई पर्पस है,
तो ब्लांचिंग यहाँ सर्व करेगा, इट रिड्यूसेस द माइक्रोबियल एक्टिविटी, आई टोल्ड यू लाइक अभी मैंने आपको बोला एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है ये रिड्यूस करता है। और एक और चीज है, आपको पता होगी जो मशरूम्स है उनसे डिफरेंट गैसेस निकलते हैं, ठीक है, ये उन गैसेस को रिमूव करता है which are emanated from these mushrooms, so that is why even it reduces the bacterial counts as well, so that's why we go for the blanching. Then we go for canning. अब हमने ब्लांचिंग जिन मशरूम्स का किया उन्हीं मशरूम्स को हम कैन में डालेंगे, फिल द कैन विद दीज मशरूम्स। और उस कैन में क्या होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें कम से कम 2.5% सोडियम क्लोराइड और सिट्रिक एसिड होना चाहिए इन द परसेंट 0.2 to 0.5%। तो ये कंपोनेंट्स जो है इनका सोल्यूशन जो है उस कैन में होगा जिसमें हम मशरूम्स को डालेंगे। Then after that those cans containing this solution as well as the mushrooms which are to be canned, those are sealed। और सील करने के बाद उनको क्या करते हैं, उनको स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन क्या होता है, क्यों हम करेंगे स्टरलाइजेशन, you know that sterilization it is done to make a substance contamination free। स्टरलाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि मे बी ड्यूरिंग हैंडलिंग प्रोसेस अभी तक जो हम कैनिंग तक आ गए, मे बी हमारे हाथों से या जो भी हमने चीजें यूज की कोई ना कोई कंटामिनेशन रह गई हो, सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट कंटामिनेशन विल गो फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन से हमारे ये जो कैन्स है ये स्टराइल हो जाएंगे, दैट मीन्स ये कंटामिनेशन फ्री हो जाएंगे। स्टरलाइजेशन के लिए हम एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्लेव। मे बी यू माइट हैव विजिटेड द लैब्स, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, नॉर्मली 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर ये हम करते हैं ऑलमोस्ट फॉर 1 आवर। 1 आवर की ड्यूरेशन के लिए हम 121 डिग्री सेल्सियस पे इन कैन्स को स्टरलाइज करेंगे। Then after that, once sterilization process is over, अब हमें इनको कूल करना है। Then we have to go for the rapid cooling। उसके लिए हमारे पास एक वॉश सिंक होगा जहाँ पे आप इनको कूल करेंगे by with the help of running water। Then अब कैनिंग के बगैर अलावा आपने देखा होगा बॉटल्स में भी अवेलेबल होते हैं मशरूम्स, देखे हैं, you might have found the mushrooms available in bottles in the market, ठीक है, कैनिंग में भी कैन्स में भी अवेलेबल होते हैं, टिन के जो कैन्स होते हैं और बॉटल्स में भी अवेलेबल होते हैं। जो बॉटलिंग का प्रोसेस है ये नॉर्मली इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ कैनिंग। And if you will compare the two processes, that is canning and bottling, this process requires somewhat less instrumentation as compared to canning। जितने instruments की ज़रूरत आपको canning में पड़ेगी उतने instruments की ज़रूरत आपको bottling के लिए नहीं पड़ेगी। That is one of the major differences। Then you know that mushrooms को जो है they are of different sizes, ठीक है, different size के mushrooms होते हैं, हम उनकी sorting करेंगे based on the size and maybe based on the quality as well, ठीक है, based on the size as well as quality we'll sort the different mushrooms जो भी हमारे पास होंगे। तो again for the process of bottling हम क्या करेंगे, we'll again go for blanching। and now you know कि हम ब्लांचिंग क्यों करेंगे। तो ब्लांचिंग यहाँ पे आप सेम सॉल्ट एंड सक्सिनिक एसिड यूज करेंगे अगेन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 4 to 6 मिनट, 4 से 6 मिनट तक आप इसको ब्लांचिंग करेंगे। देन व्हाट यू विल डू, यू विल फिल द बॉटल्स, जैसे कैन में हमने ब्राइन सोल्यूशन फिल किया था, हियर एज वेल यू विल फिल द बॉटल्स जिनमें आपको मशरूम प्रिजर्व करने हैं, उनमें आप अगेन ब्राइन सोल्यूशन डालेंगे एंड जो मशरूम्स आपने जिनकी ब्लांचिंग की है वो फिर इन बॉटल्स में फिल करेंगे, लेकिन आप इन बॉटल्स को हाफ वे सील करेंगे, यू विल नॉट सील द बॉटल्स कंप्लीटली। हम बॉटल्स को कंप्लीटली क्यों नहीं सील करेंगे, देखिए जो ही अभी तक का जो हमने प्रोसीजर किया
तो अब हमें इनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए रखना है, तो इसमें कोई एयर अंदर नहीं रहनी चाहिए. सो फॉर दैट पर्पज व्हाट विल डू, विल सील देम हाफ वे. उसके बाद हम इनको विल बॉयल दीज बॉटल्स, ठीक है, एट लीस्ट फॉर 30 मिनट्स. वाई विल बॉयल दीज बॉटल्स? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इट फ्री फ्रॉम द एयर जो इसमें भरा है. तो 30 मिनट्स बॉयल करने से इससे वो फ्री एयर जो है वो रिलीज हो जाएगा. दैट विल बी रिमूव्ड. एंड आफ्टर दैट यू कैन टाइटली कैप द बॉटल्स. उनका लिड जो है वो आप टाइटली कैप कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको बाहर निकाल सकते हैं. एंड अगेन यू हैव टू लेट द बॉटल्स टू कूल. देन आपको पता है एक और मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है मशरूम पिकल. आपने खाया होगा मशरूम का अचार, है ना. तो ये क्या है? दैट इज बेसिकली द प्रिजर्व फॉर्म ऑफ मशरूम्स, है ना. मशरूम का अचार जो हम खाते हैं वो प्रिजर्व फॉर्म ऑफ मशरूम्स होता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगेन विल सॉर्ट द मशरूम्स एंड विल गो फॉर द वॉशिंग. उसके बाद हम क्या करते हैं, वी कैन गो इफ वी, इट्स अप टू वी that if we want to make the pickle of whole mushroom or we'll go for the slicing. हम इनको slices में काट के pickle बनाए या as a whole pickle बनाए. यहाँ पे भी हम blanching करेंगे but with 3% salt water. कितने परसेंट से? salt 3% salt water से blanch करेंगे for at least 3 to 4 times. ये blanching जो है इसमें हम 3% salt से करेंगे but it will not be a single blanching. You have to go for at least 3 to 4 blanchings for for this method of preservation if you want to go for the pickle making. Then after that what you will do, जो excessive water होगा उसको आप drain off करेंगे वहां से, ठीक है. जो ही आपने blanching की, now that is basically the salt जो water होता है, तो उस excess water को आपको drain करना है. And after that again you have to allow them to cool. क्योंकि जो आपने बॉइलिंग इससे सोल्यूशन से मशरूम्स निकाले वो गर्म होंगे. जब आप ड्रेन करेंगे वाटर फिर आप अलाउ करेंगे अगेन उनको कूल होने के लिए. कूलिंग के बाद ही आप उनको फिर बॉटल या जार में जिसमें भी आपको पिकल बनाना हो उसमें फिल करेंगे. एंड अगेन अब पिकलिंग के लिए जो है ब्राइन का परसेंटेज जो है वो होना चाहिए 22%, ठीक है, 22% होना चाहिए. दैट शुड बी एडेड इन दैट बॉटल और जार. एंड अ लिटिल विनेगर, शुगर, उसमें विनेगर होना चाहिए, शुगर होना चाहिए एंड अदर स्पाइसेस होने चाहिए उसमें बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिजर्व इट इन द फॉर्म ऑफ पिकल. सो यू हैव टू एड एडिशनली, यू हैव टू गो फॉर द एडिशन ऑफ स्पाइसेस. आप ऐड करेंगे अपने हिसाब से, आप उसमें विनेगर ऐड करेंगे, आप उसमें सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे या कोई और सप्लीमेंट भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं लाइक विटामिन सी और citric acid in the form of citric acid. That is also a source of vitamin C. So that will make those mushrooms, that will give that appealing color to those mushrooms as well. Besides preservation, it will increase that sense of appealing to the mushrooms. Then what you have to do again, you don't have to close the lids completely at once. आपको थोड़ा सा लूजली उनको बंद करना है लिड को to allow that air to move out. Again you will go for the steaming. For how long? आप 1 घंटे के लिए इनको steaming करेंगे so that the air will move out. After that you will close the lids. Lids को close करेंगे, उसके बाद again you will repeat the process. You will allow them to cool. And the contents, you have to chill the contents before you go for the eating. You have to go for the chilling of those jars or bottles. Then pickles आप देखेंगे, अब जो भी methods of preservation है, चाहे आप मशरूम्स को ड्राइड फॉर्म में यूज कर सकते हैं. आपने देखा कि ड्राइड फॉर्म में मशरूम में बहुत सारे स्टोर्स में पैकेट्स में बिक रहे होते हैं ड्राइड मशरूम्स, है ना. आप ड्राइड मशरूम्स को जो भी जिन भी तरीकों से हम मशरूम को प्रिजर्व करते हैं उनमें सबसे बेस्ट और सबसे यूजफुल मोड जो है प्रिजर्वेशन का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, इट इज पिकलिंग. एक तो ज्यादा टाइम तो ये रहेगा एज इफ विल कंपेयर इट विद कैंड और बॉटल मशरूम्स,
बट बिसाइड्स दैट आप देखेंगे कि कैंड मशरूम से ज़्यादा टेस्ट आपको पिकल्ड मशरूम में आएगा. सो दिस इज द more useful way of preservation if you want to go for the long term preservation. अब besides long term and short term preservation, जो हमने methods of preservation discuss किए, जो दो main methods है, besides these two methods हम other method भी use कर सकते हैं. जैसे we can go for the use of chemicals. आप chemicals को भी use कर सकते हैं mushrooms को preserve करने के लिए. अब हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हम केमिकल्स को प्रिजर्व कर सके बाय द यूज और बाय मेकिंग यूज ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. वेयर देखिए आपके पास कैनिंग बॉटलिंग की फैसिलिटी जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होगी. अब अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है स्टिल देन यू वांट टू गो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मशरूम्स. लेकिन आपके पास मशरूम्स है लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उनको प्रिजर्व करने के लिए. तो सबसे आसान तरीका उस जगह पे मशरूम्स को प्रिजर्व करने के लिए है कि आप डिफरेंट केमिकल्स का यूज कर सके. जैसे आपके पास मैंने कहा हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम मेटासल्फाइड और इवन एस्कॉर्बिक एसिड. वी कैन यूज दीज केमिकल्स एंड वी कैन सिंपली treat the mushrooms with a solution containing all these components, that is common salt, citric acid, ascorbic acid, sodium bicarbonate and potassium metal bisulfite, a solution containing all these components. We can treat our mushrooms with this solution in order to preserve them. अब उसके बाद ये भी sort of this process is also called blanching. इसको भी हम blanching बोलते हैं. And then we can preserve these mushrooms into clean glass containers. कोई भी हमारे पास glass containers होंगे having a lid, उसमें हम इनको preserve करेंगे and किसी lid से या हमारे पास कोई sealing material like we have paraffin wax उससे seal करेंगे. अब जो आपने ये process use किया mushrooms को preserve करने के लिए, इन mushrooms को आप room temperature पे रख सकते हैं. और रूम टेम्परेचर अराउंड होता है ना ये 25 के इसमें रेंज में. तो आप इनको रूम टेम्परेचर पे भी प्रिजर्व कर सकते हैं. वहाँ पे आपको कोई रेफ्रिजरेशन या कोई कोल्ड स्टोरेज की भी ज़रूरत नहीं है. ये है अंडर मिनिमल फैसिलिटीज. जब आपके पास ना कैनिंग बॉटलिंग फैसिलिटी हो ना आपके पास बाकी प्रिजर्वेशन फैसिलिटी हो, that time you can go for the use of chemicals to preserve your mushrooms. अब जो भी प्रिजर्वेशन के मेथड्स हमने डिस्कस किए उनमें मोस्ट पॉपुलर मेथड्स जो है प्रिजर्वेशन के वो क्या क्या है जो हम कॉमनली यूज करते हैं. इट इज ड्राइंग, इट इज प्रिजर्विंग इन एयर टाइट कंटेनर्स जैसे मैंने आपको बोला जहाँ पे हम यूज ऑफ केमिकल्स करेंगे. और नॉर्मली वी गो फॉर द ब्राइनिंग. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला हम कैनिंग और बॉटलिंग में करते हैं ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं वो ब्राइन सोल्यूशन ही होता है जिसमें हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. और दूसरा मेथड जो है फ्रीजिंग. सो ऑल दीज मेथड्स व्हाट वी डिस्कस टुडे, these are the common and most popular methods by which you can preserve your harvested mushrooms. So this was all about the processing and preservation. And processing, let me tell you, processing simply means all the procedures which the mushrooms undergo right starting from the harvesting stage. Harvesting के बाद till आप उनको packaging, starting from harvesting till packaging, whatever methods we do, whatever processes we make use of, that all comes, that is all a processing method. ठीक है, प्रोसेसिंग हम करते हैं वो प्रिजर्वेशन वो सारा जो है वो सारा प्रोसेस होता है. एंड प्रिजर्वेशन आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर टू बिकॉज आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल. वो हाईटेक मेथड्स नहीं यूज किए आपको बताने के लिए. दीज आर क्वाइट सिंपल मेथड्स बाय विच आर क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू यू एंड यू कैन आई थिंक इम्प्लीमेंट these methods as well at your level. Thank you very much. This is all about